So dear students, in this video I will discuss about volume of right circular cylinder. So volume of right circular cylinder, you already know volume of right circular cylinder. You know already that shape of cylinder is like this. So here volume will be volume of cylinder is area of base into height. So this is a general formula which you generally apply to many of the three-dimensional solids or shapes. Here base is a circle. This is a circle whose area is pi r square. So pi r square into height is h, r being the radius of base. So therefore V is equal to pi r square h. This is the formula for volume of cylinder, where r is radius of base, r is radius of base and h is the height of cylinder. मेनली ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, और ये फॉर्मूला आपका क्यूबॉइड के केस में भी अप्लाई होता है. एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट वहाँ भी कर सकते हैं. जैसे आप क्यूबॉइड होता है तो क्यूबॉइड के केस में आपका एल इंटू बी बेस हो जाता है और हाइट एच होता है, एल इंटू बी इंटू एच आ जाएगा. 13.6 क्वेश्चन नंबर 1. 13.6 question is like this: the circumference of the base of a cylindrical vessel is 132 centimeter and its height is 25 centimeter. How many liters of water can it hold? Here we are given 1000 centimeter cube is equal to 1 liter. तो यहाँ पे circumference of base of cylindrical vessel दिया हुआ है. cylindrical vessel है आपका, तो डायग्राम एक बना लीजिए. डायग्राम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, फिर भी डायग्राम बनाने से आपको क्वेश्चन को पिक्चर देखने में आपका माइंड और एक्टिव काम करेगा. तो यहाँ पर सर्कमफरेंस दिया हुआ है. सर्कमफरेंस of base is 132 centimeter, that is 2 pi r is equal to 132 centimeter, and h is also given. H is given 25 centimeter. To solve this, for pi is 22 by 7, r you have to calculate. So we can 7 to this 2 will divide this 66 and 22 will divide this 3 times. So r is equal to 7 into 3, that is 21 centimeter. And now we can find the volume of vessel. Volume of vessel is equal to pi r square h. Substitute values of, so this is 22 by 7, r is 21 into 25. This will come in the centimeter cube. तो इस तरह से आपको सर्कमफ्रेंस दिया हुआ था, तो 2 पाई आर की वैल्यू 132 लिखा, यहाँ पाई की वैल्यू 22 by 7 और ये 2 से आपका 66 हुआ, फिर
22 से 3 टाइम्स कैंसिल हुआ और यहाँ पर 7 into 3 से R आ गया 21। अब आप वॉल्यूम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, इसका कितना आएगा। तो पाई आर स्क्वायर एच 21 into 21 into 25, 7 से 3 आपका कैंसिल हो सकता है, यहाँ पे ये आ जाएगा 66 into 21 into 25 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन यहाँ पर आपको बोला गया है लीटर्स में फाइंड करना, तो आपका 1 लीटर के बराबर है। तो वॉल्यूम इन लीटर्स, वॉल्यूम ऑफ वेसल इन लीटर इज इक्वल टू, इसी को आपको 1000 से डिवाइड कर देना है। 66 into 21 into 25 अपॉन 1000 लीटर्स, ये आपका आंसर थी। 25 से कैंसिल कर सकते हैं, 40 आ जाएगा यहाँ पे, और फिर इसको भी आप डिवाइड कर सकते हैं 20, और ये हो गया 33। तो ये आ गया आपका 33 into 21 अपॉन 20। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 33 into 21 बाई 2 into 10 कह सकते हैं इसको। तो आप इनको 33 बाई 2 का आप 16.5 लिखेंगे, इसको 2.1 लिखेंगे, और ये आपका सॉल्व हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 34.65 लीटर। 34.65 लीटर, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आप इसको इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे 165 है, इसको आपको 2.1 से मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पे, क्योंकि 33 बाई 2 आपका 16.5 हुआ और 21 बाई 10 आपका 2.1 हुआ, उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लिया गया। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो रहा है। मेनली यही ध्यान रखना आपको कि यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब पे जो वॉल्यूम था उसको लीटर में कैसे कन्वर्ट किया गया है, 1000 से डिवाइड किया गया। क्वेश्चन नंबर 2 इज लाइक दिस, द इनर diameter of a cylindrical wooden pipe is 24 centimeter and its outer diameter is 28 centimeter. The length of the pipe is 35 centimeter. Find the mass of the pipe. If 1 centimeter cube of wood has a mass of 0.6 gram. So this is the question. Inner diameter of wooden pipe is given 24 centimeter, outer diameter is given 28 centimeter, length of pipe is given 35 centimeter. Find the mass of the pipe if 1 centimeter cube of wood has a mass of 0.6. So this is case of hollow pipe, hollow cylinder. This type of hollow cylinder is here. Same on this side also. So we are given inner diameter 2 small r is equal to given 24 centimeter, and this implies r is equal to 12 centimeter. Outer diameter is 2 capital R is 28 centimeter, and this gives you r equal to 28 half 14 centimeter. And length of pipe is given. This is the length of pipe, h is 35 centimeter. तो मेनली हमको पहले यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड करना होगा और फिर उसके अकॉर्डिंग हम मास में उसको कन्वर्ट करें, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का आपको मास दिया हुआ इतना है, तो जितना भी आपका वॉल्यूम आता है उसके अकॉर्डिंग आप 0.6 ग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा, उसका मास मिल जाएगा।
तो यहाँ पे आप वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर का फॉर्मूला यूज करेंगे। वॉल्यूम ऑफ पाइप, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर इज वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर is pi capital R square minus small r square into h. So this formula will be applied. So here it is, volume of pipe is equal to 22/7, capital R is 14 square minus small r is 12 square into h 35, and this 7 will cancel 35, and 22 into 5 we can multiply 110. A square minus b square you can write here. 14 plus 12, 14 minus 12, a plus b, a minus b. So it is 110 into 26 into 2. So it is 110 into 52 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका वॉल्यूम आ गया। जो भी आपका पाइप है उसका वॉल्यूम, पहले डायमीटर दिया था, डायमीटर से इधर रेडियस निकाला, आउटर डायमीटर से आउटर रेडियस निकाला, हाइट आपको दिया हुआ है। ये हॉलो सिलेंडर का केस है, मतलब अंदर खाली है आपके। तो इस तरह से वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, और इसमें वैल्यू लग गया। पाई की वैल्यू 22/7, कैपिटल आर आपका 14 है, स्मॉल आर 12 है, आर वैल्यू 35 है, ये एच की वैल्यू 7 से 35 कैंसिल हो गया। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया। 22 इंटू 5 110 हो गया, ये 26, ये 2, यहाँ पर 52 इंटू 110 आ गया। अब इसको आगे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 भी आपका आएगा दोनों बार, क्या आ जाएगा 572, ये आपका आ गया 5720 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका वॉल्यूम ऑफ पाइप हो गया। वॉल्यूम ऑफ पाइप मिल गया आपको। अब आप मास निकाल सकते हैं। सो मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड गिवन 0.6 ग्राम। So therefore mass of this 5720 centimeter cube will be 5720 into 0.6। 0 से आप पॉइंट को खत्म कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 572 into 6, 6 2 जा 12, 6 7 जा 43, 6 7 जा 42 and 43, 1 carat, and 6 5 to 30, 34. So now it is 3.432 decimal will come after 4 decimals. This is gram, and if you want to write in kilogram, then this will become 3.432 kg. This is the answer. इस तरह से आपको इस क्वेश्चन में पहले वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर आपको अप्लाई करना है, यहाँ पे ध्यान देना है। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ फाइंड कर लेने के बाद वॉल्यूम आपका आ गया 5720 सेंटीमीटर क्यूब। और ये आपको दिया हुआ क्वेश्चन में कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास होता है वो इतना होता है। तो 5720 सेंटीमीटर क्यूब का क्या होगा, 10 और ये 0.6 कैंसिल हो गया। 572 into 6 इसको मल्टीप्लाई करके आपको ये ग्राम में आया, उसको फिर आप केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन 1 और 2 का सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। So that's all in this video.